Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So students, today's visual lecture is HLB scale hydrophilic lipophilic balance. So this video for D Form second year students and B Form first year also, and B Form fourth sem for course dispersion. Okay, so students, HLB values, HLB scale, this is hydrophile lipophile balance. Okay, so they are the categorize the emulsifying agents for preparation of stable emulsion. Students, these HLB scale are helpful for the suitable type emulsifying agents are add, and the emulsion can make stable. Okay, so and emulsifying agents, suitable emulsifying agent have an ideal properties. It should be capable of reducing the interfacial tension between the two immiscible liquids. Okay, and it should be compatible with other ingredients ऑफ द प्रिपरेशंस. ठीक है, एक दूसरे इनके जो इंग्रेडिएंट हैं इमल्शन के एक दूसरे इंग्रेडिएंट में ये कंपैटिबल होना चाहिए. इट शुड बी नॉन टॉक्सिक होना चाहिए. ओके, एंड अभी मैंने जैसे कि बताया कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द बोथ टू इमिसिबल फेजेस. ठीक है, कौन कौन सी इमिसिबल? डिस्पर्स फेज एंड कंटिन्यूस फेज. ठीक है, इट शुड बी केमिकली स्टेबल होना चाहिए. So this HLB scale, that is values of emulsifying agents along with their applications, and they are the these scale are the categorize the emulsifying agents. So in the formulation of emulsion. Okay, so the what is emulsifying agents? So students, the emulsifying agents reduces the interfacial tension between the two phases. That is oily phases and aqueous phases, that is also dispersed phase and dispersed medium or continuous phase. Okay, thus make them miscible with each other and form a stable emulsion. Okay, so emulsifying agents are known as a emulgent or emulsifiers. So next is hydrophilic lipophilic balance. Okay, so HLB values or HLB balance, so that are hydrophilic lipophilic balance. This scale firstly was given by William C. Griffin in 1949. Okay, the HLB system consists arbitrary scale in which values are assigned to different surfactants according to their nature. Okay, so ये जो HLB बैलेंस है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, ये जो स्केल है ये फर्स्टली विलियम सी ग्रिफिन ने 1949 में इसको बनाया था. ओके, देन जो HLB जो सिस्टम है कंसिस्ट, ये क्या करता है, ये वैल्यूज़ असाइन करता है. ठीक है, डिफरेंट सरफेक्टेंट जो इन अकॉर्डिंग टू नेचर, इनको जो हम सरफेक्टेंट जो हम इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे हम जो यूज़ करते हैं उन्हें ये कैटेगराइज करता है. ठीक है, वैल्यूज़, द वैल्यूज़ ऑफ 1 to 20 ऑन HLB स्केल रिप्रेजेंटेड लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक part. Okay, so higher number indicates the agent is hydrophilic, and while low HLB values indicates agent is lipophilic. Okay, so these are the scale 0 to 20 hydrophilic. Okay, so HLB is 10. so जो HLB स्केल है, ठीक है, इसमें क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स विच आर अवेलेबल टू प्रिपेयर अ स्टेबल इमल्शन, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेलेक्ट अ select a proper emulsifying agent for the development of a stable emulsion. Okay, so and no single emulsifying agent possesses all the properties required for the
preparations of stable emulsions. Okay, so therefore मीन्स किसी भी n नंबर ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो हैं, लार्ज नंबर ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स, ठीक है, जो कि हम यूज़ करते हैं स्टेबल इमल्शन बनाने के लिए, ठीक है, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि हमको सेलेक्ट करना प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि स्टेबल इमल्शन बनाने के लिए, ठीक है, तो प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट चूज़ करना बहुत मुश्किल है। और कोई भी नो सिंगल इमल्सिफाइंग एजेंट्स पोजेसेस ऑल द प्रॉपर्टीज़, मीन्स कोई भी सिंगल इमल्सिफाइंग एजेंट्स ऐसे नहीं हैं जिनमें प्रॉपर्टीज़ होती हो। ये सारी जो पूरी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये पूरी प्रॉपर्टीज़ किसी एक इमल्सिफाइंग एजेंट में होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो therefore sometimes it become necessary to use 2 or more than 2 emulsifying agents instead of 1 to prepare a stable emulsion, यानी कि हमको 2 से 3 से 4 इमल्सिफाइंग एक इमल्शन को स्टेबल बनाने के लिए यूज़ करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रिफिन डिवाइज्ड अ यूजफुल मेथड फॉर कैलकुलेटिंग बैलेंस्ड मिक्सचर ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स टू प्रोवाइड पर्टिकुलर टाइप ऑफ इमल्शन। ग्रिफिन जो सर ग्रिफिन जो हैं उन्होंने डिवाइज्ड किया यूज़फुल मेथड बताया हमें कि कैलकुलेटिंग बैलेंस मिक्सचर, ठीक है, जो हमारा जो इमल्सिफाइंग इमल्शन है उसमें जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं उनको किस इमल्सिफाइंग एजेंट्स को प्रॉपर हमको कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करना है पर्टिकुलर टाइप ऑफ इमल्शन में, ये उन्होंने बताया, ठीक है। इट्स कॉल हाइड्रोफाइल लिपोफाइल बैलेंस, ठीक है, इसलिए इसे बोला जाता है HLB मेथड, ठीक है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो है उसमें वो बोथ नेचर के होते हैं, हाइड्रोफिलिक भी होते हैं एंड हाइड्रोफोबिक भी होते हैं, या हाइड्रोफिलिक होते हैं और लिपोफिलिक होते हैं, ठीक है। तो एवरी इमल्सिफाइंग एजेंट्स इज़ गिवन अ नंबर ऑन HLB स्केल, ठीक है। तो हर एक इमल्सिफाइंग एजेंट्स को इस HLB स्केल में नंबर दिया गया है, अप टू 1 to 3, 3 to 8, 8 to 16, 7 to 9, 13 to 16, ओके। तो इतना दिया गया है नंबर्स उन्हें, ठीक है। तो एवरी इमल्सिफाइंग एजेंट इज़ नंबर HLB स्केल वेयर डिवाइडेड इनटू 18 यूनिट्स, ठीक है। अभी हम इसको हमारे जो काम का है उसको हम जानते हैं, इसको 18 यूनिट्स में हमने बांटा, मतलब ये बटा हुआ है, ठीक है, 18 यूनिट्स में इसको बांटा गया है, ठीक है। तो 18 यूनिट्स में 8 यानी कि इमल्जेंट्स यानी इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो हैं हायर नंबर जिनका है 8 to 18 इंडिकेट्स हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जो 8 से 18 हैं यानी कि 8 दिस इज़ 8 से जो 18 हैं, ठीक है, 8 से 18 ये पूरे जो हैं आपके हाइड्रोफाइल होंगे, ठीक है। इसमें आपके कौन कौन से हैं, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट हैं, ठीक है, डिटर्जेंट्स हैं, ऑयल इन वाटर टाइप एजेंट इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे आपके आएंगे। नेक्स्ट है हाइड्रो प्रोड्यूसेस ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। देखिए यहाँ पे क्या है कि 8 से 18 जो है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है। तो इनका जो डिस्पर्स फेज जो है वो हो गया ऑयल, एंड लार्ज अमाउंट में यहाँ पे हाइड्रोफिलिक है, मीन्स वाटर लविंग, यानी कि कंटिन्यूस फेज हमारा हो गया वाटर का, क्लियर। सो नेक्स्ट इज the emulsifying agent with lower numbers 3 to 6 represent lipophilic properties, okay, and produces W/O type emulsion, ठीक है। सो 0 to 8 यहाँ से हम देखें, 0 to 8 अगर देखें या 3 to 6 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो इमल्सिफाइंग एजेंट आता है, ठीक है, ये लिपोफिलिक यानी कि वाटर हेटिंग और लिपिड्स सॉल्युबल प्रॉपर्टी वाले इमल्सिफाइंग एजेंट होंगे, ठीक है, यानी कि लिपोफिलिक इमल्सिफाइंग एजेंट इसमें आएंगे, ठीक है।
तो इसमें जो इमल्शन फॉर्म होगा उसका जो लार्ज अमाउंट में यहाँ पे ऑयल प्रेजेंट है, इसलिए W/O टाइप इमल्शन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके वेटनिंग एजेंट एंड स्प्रेडिंग एजेंट्स आएंगे, यहाँ पे W/O इमल्सिफाइंग एजेंट्स आएंगे, एंटी फोमिंग एजेंट्स आएंगे। ठीक है, तो ये होंगे आपके जैसे कि यहाँ पे नंबर दिया गया है 1 to 3 नंबर इज अ एंटी फोमिंग एजेंट्स। ओके, देन 3 to 8 इज अ W/O emulsion. Okay, and 8 to 16 is a O/W. 8 to 16 is a O/W type emulsion. Okay, then 7 to 9 is weighting and spreading property. ठीक है, 7 to 9 is weighting and spreading property. Okay, next 13 to 16 to 16 is a detergents properties. Okay, then मोर ओवर दिस नंबर यानी कि 46 से लेके 20 to 46 के बाद जितने भी हैं वो हमारे सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स हैं। ओके, देयर आर को सॉल्वेंसी। ओके, तो ये सारे हो गए हमारे HLB वैल्यूज़। अब हम देखते हैं लिपोफाइल हाइड्रोफाइल बैलेंस जो है उनके लिए फार्मूलाज जो है। ठीक है, तो ये सारे फार्मूला होते हैं। इसके पहले हम जान लेते हैं कि यदि हमारा HLB वैल्यू और इमल्सिफाइंग एजेंट अगर उसके एप्लीकेशन देखें, ठीक है, तो अगर मैं अकेशिया को नंबर 8 देती हूँ, ठीक है, नंबर 8 में अगर हम अकेशिया को देखते हैं, ठीक है, तो अकेशिया इमल्सिफाइंग एजेंट W/O। ठीक है, यानी कि इसमें जो इमल्शन बनेगा वो कौन से टाइप का इमल्शन बनेगा, अगर ये मैं उसको 8 नंबर देती हूँ हमारे अकेशिया को, ठीक है, तो वो जो इसमें बनेगा वो होगा इमल्शन जो बनेगा वो O/W टाइप इमल्शन बनेगा। ठीक है, बिकॉज 8 to 18 जो मार्क है, 8 to 18 जो मार्क है वो किसका है, हाइड्रोफाइल इमल्सिफाइंग एजेंट्स का है। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ट्रैगाकैंथ। ठीक है, 13 अगर हम देखते हैं 13 नंबर का अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमारा आएगा ट्रैगाकैंथ। ठीक है, तो इसमें कौन सा इमल्शन बनेगा, O/W टाइप इमल्शन। ओके, देन अब अगर हम देखते हैं सॉर्बिटॉल का 4.7, अगर यहाँ पे 4 में अगर ये सॉर्बिटॉल आ रहा है तो कौन सा बनेगा, लिपोफाइल बैलेंस। ठीक है, और इसके लिए जो बनेगा इमल्सिफाइंग एजेंट जो हम यूज़ करेंगे W/O टाइप इमल्शन। ओके, दैट इज़ दिस HLB वैल्यूज़। ठीक है, अब HLB बैलेंस फॉर्मूला हम देखते हैं। HLB 21 minus SA, okay, bracket close. So S is a saponification value and A is a acid value. Okay, or where oxyethylene surfactant are used, HLB equals to E/5 bracket close. ठीक है, E is the number of ethylene oxide unit per molecules. Okay, so this is the HLB balance formula. So number of HLB values, so suitable HLB value is chosen is tough. So in this HLB scale very easy to choose the emulsifying agent for proper type of emulsions। ठीक है, तो ये ingredients हैं, जैसे कि हमारा रिक्वायर HLB फॉर W/O अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, O/W इमल्शन एंड W/O। तो यदि हम स्टीरिक एसिड यदि हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो स्टीरिक एसिड में 6 जो नंबर है हमारा W/O के लिए होगा एंड 15 जो नंबर है वो हमारा O/W टाइप इमल्शन के लिए होगा। ठीक है, वैसे ही अल्कोहल, सिटाइल अल्कोहल एंड स्टेराइल अल्कोहल, लेनोलिन एंड एनहाइड्रस। ठीक है, ऑयल, कॉटन सीड ऑयल। ठीक है, मिनरल ऑयल्स के लिए, मिनरल ऑयल्स में आपके पैराफिन आएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है पेट्रोलैक्टम 5 मिलेगा 5 नंबर W/O टाइप के लिए एंड O/W इमल्शन के लिए रिक्वायर्ड HLB वैल्यू इज़ 12. ओके. देन बीज वैक्स में 4 नंबर अगर हम देते हैं W/O को तो 12 नंबर इसका जाएगा O/W टाइप इमल्शन. ठीक है. तो ये हमारे हो गए HLB वैल्यू में अगर जिस भी टाइप का हम इमल्शन बनाएंगे तो उस टाइप का उस नंबर का हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज़ करेंगे. ठीक है. थैंक यू.